کا ملاقات ہو گئی ہے چیف جسٹس صاحب نے کیس لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے؟ ملاقات ہو گئی ہے اور یقین دہانیاں مطلب ہے یہ ہمارے میں اتفاق ہوا ہے بہت سی باتوں پہ، اور وہ آپ کو آج ان ہائی کورٹ کے اعلانات میں ملے. ہائی کورٹ تاریخ پہ بھی دوسرے بھی جو ہے وہ خود وہ بیان دیں، پریس ریلیز ہوگی یا انہوں نے کسی نے اسپوکس مین کے ذریعے ہو، یہ ہمیں نہیں اطلاع، پر وہ ہو گئے ہیں اور کچھ ان کا فائدہ ہی ہوگا. اور ہم دیکھیں گے کہ ملاقاتیں بھی زیادہ فریلی ہوں گی اور بڑے اچھے امید تو یہ کرتے ہیں. اور اس میں بات جو تھی وہ یہ تھی، اصل میں چیف صاحب نے بھی کہا کہ ان کے لیے یہ دشواری تھی کہ وہ اس دن انہوں نے کہا مجھے کہ بڑے میں آپ کے ساتھ ہی صاف ہی بات کرتا ہوں، بڑا میں مجبور تھا یہ ڈیٹ کو پوسٹپون کرنے کا، کیونکہ ایک درخواست انہوں نے دی ہوئی تھی، ایک درخواست ہم نے دی ہے آن میڈیکل گراؤنڈ. وہ میڈیکل گراؤنڈز میں تو ابھی آیا ہوں، اس میں پہلے لیے نہیں گیا، اب ہم نے ایڈیشنل گراؤنڈ کے طور پہ میڈیکل گراؤنڈ پر، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم اور سب سے ضروری عمران خان کی صحت. اگر وہ 10 دن ہی آزاد ہوتا اور صحت کے اس کا خیال کرتے ہیں یا اس کو اسپتال بھیج دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. ہم اس کے قید کے 8 دن اڈیالہ جیل میں رہنا ایکسٹرا برداشت کر سکتے ہیں، پر اس کی آنکھ کا ضائع ہو جانا یہ نہیں برداشت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کرمنل ایکٹیویٹی ہے گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ اب شہباز شریف کی ہے، سو بد دعا اس طرف جاتی ہے، پر وہ اس کو ڈیفلیکٹ کر کے وہ بد دعا کو ہماری وہ ادھر کسی اور سمت لے جاتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، جس طرح عمران کا تو میں لے رہا ہوں، بانی چیئرمین ہے، اور وہ ہمارے ماشاء اللہ کتنے نام دیے جا رہے ہیں ان سے، حافظ صاحب کو کہتے ہیں، تو وہ ان کو لوگوں کو یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے، اور میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ ایک آنکھ کا ضائع ہو جانا کتنا بڑا جرم ہے، اور اس سے کیا تکلیف، اور اس کو عدالت کس طرح اسیس کرتی ہے. عدالت اس طرح اسیس کرتی ہے کہ اس میں جس طرح آج بتایا گیا تھا کورٹ میں بھی، ایک ایسا کیس ہے جو ڈوگر صاحب کا اپنا بھی کیس، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی جو ہے یہ تو بہت ہی اہم انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم ترین جز ہے، اور اس پہ کوئی مرسی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ وہ کہیں گے، وہ دوسری پارٹی کہے گی کہ کون سا اس میں کوئی پتھر مارا ہے، آنکھ میں پتھر لگا ہے نہیں لگا، آنکھ میں کوئی ڈنڈا لگا ہے نہیں لگا، آنکھ میں کوئی گولی لگی ہے نہیں لگی. وہ آپ کے بیچ میں ان پہ کس طرح ڈال سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ انہوں نے کیا، وہ کوئی اس کو عدالت ہو گئی ہوگی. ایک بات سمجھ نہیں، عمران خان کو بالکل سب رشتہ داروں، ڈاکٹروں اور وکلا، رشتہ دار بھی، ڈاکٹر بھی، وکلا بھی سے ٹوٹلی کٹ آف کرنے کا سلسلہ کوئی 60-65 دن پہلے شروع ہوا. اب وہ 60 دن سے زیادہ سالٹری میں کاٹ، تنہائی میں، اس کو ملنے نہیں دیتے، رشتہ داروں کو بتاتے نہیں کہ پرمز میں ہم لے جا رہے ہیں اور وہاں یہ پروسیجر ہوگا کوئی، اس کو بتاؤ. رشتہ داروں کو بتانا یہ تو پریزن رولز میں لازم ہے. پہلی بات، آپ زخمی ملا ہے ایک قیدی اور وہ
بے ہوش ہوا ہے یا گرا ہوا ہے, سر سے خون نکلا, تو آپ پہلے اس کے بھاگ کے جاؤ گے, وہ اس کا کارڈ نکالو, اس کا کارڈ ہولڈر میں سے نکالو, اور اس کا نمبر دیکھو گے, اس کو فون کرو اور کہو بھائی بول رہے ہیں جی شکر زندہ, آپ بول رہے ہیں آ جائے تھے شکر زندہ ایکسیڈنٹ. اب اس کو ایکسیس دینا ٹو دی پرزنر از آلسو, کیونکہ وین دی prison rules say کہ the family shall be intimated in case of injury to a prisoner, his family or her family. اس کا مقصد ہے کہ انٹیمیٹ کرو گے تو یہ نہیں کر سکتے آپ انٹیمیٹ کر کے اور بہنوں کو باہر جیل کے باہر بٹھائے رکھیں, اس سے ملاقات نہ کریں. اگر آپ نے انٹیمیٹ کیا ہے اور انٹیمیٹ کا لفظ اگر اس میں آیا ہے تو انٹیمیشن کے اس میں آبویسلی آپ نے یہ تو نہیں بتانا کہ بہن جی تسی اتھے رہو اسی خیال پہ کرنے ہیں تے شوہر تواڈے انہوں نے سر پاڑ دیا. اب یہ تو نہیں کہ اس بتانا تھا. اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے بتا دیا. بھائی بتانے کے بعد ملاقات لازمی ہے انڈر دا پریزن رول. اب وہ نہیں کرائی کسی, انہوں نے کرائی نہیں. اب یہ دیکھو یار, مجھے میری عمر 80 سال ہے اور مجھے پارکنسن بھی ہے. اب اس کی وجہ سے میں ذرا میری زبان میں نکلت ایسی نہیں ہوتی تھی. کبھی آپ نے سنا ہے بڑی تقریریں کی ہیں میں, سینکڑوں گولی, اور ہر 4 گھنٹے بعد مجھے یہ گولی لینی پڑتی ہے. پر میں اتنا اس بیماری کی وجہ سے, اور مجھے ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دیا پرسوں 6 days بیڈ ریسٹ, اور میں پروفیسر نے گولی میں. اچھا تو وہ جو اب وہ ملاقات میں سر کیا طے ہوا, ڈیٹ ملی اور کب تک کی ڈیٹ ملی؟ ڈیٹ ملی, ڈیٹ ملی اور یہ روزے داروں سے بات رہے. اچھا جی, ڈیٹ ملی, وہ مل گئی ہے, وہ ہائی کورٹ اناؤنس کرے گا. ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ہم نے جو آج بحث کی ہے اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم ایڈجرنمنٹ مانگ رہے ہیں. ایک ہوتا نا ایک دن کوئی نیا ڈرامہ کر دو, آج اعتراض احسن کو لے آؤ تو کیس آگے چلا جائے گا. میں نے ججز کو بتایا کہ میرے سے برداشت نہیں. مجھے کئی دفعہ عمران نے کہا اپنی پارٹی میں آؤ, ہر طرح, میرا دوست ہے. تو میں نے کہا جب یہ اس کی آنکھ کا پتہ لگا تو میں بڑا بے چین تھا, تو میں کل پرسوں ہی آ گیا اسلام آباد, اور میں نے علیمہ سے اور رانی اور عظمیٰ سے میں نے کانٹیکٹ کیا. وہ طے ہو گیا کہ آج میں پیش ہوں گا. پر ہم نے ایک درخواست دی تھی ایڈیشنل ایویڈنس کی, وہ ہمیں اس لیے دینی پڑی کہ میڈیکل کا جو معاملہ ہے اس پہ ضمانت ہونی چاہیے. اور میں نے جیسے بتایا کہ خود چیف جسٹس صاحب کا اپنا فیصلہ ملتان بینچ, تو اس سے ہمیں بڑی امید پڑی ہوئی. لیکن ہم ایڈجرن نہیں کروانا چاہتے تھے کہ اس کی بنیاد پہ کہ یہ اب انہوں نے فائل کیا, اس کا جواب دو گورنمنٹ والے, اور وہ بنیاد بن جائے. دوسری چیز ہم جو نہیں چاہتے تھے, ہمارے لیے مشکل ہوتی کہ اگر وہ تاریخ عید سے پہلے یا عید کے بعد وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہائی کورٹ یہ سلمان صفدر صاحب اور جو دیگر ان کے لیے پیش ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے کورٹ نے لکھ دیا فار اے ڈیٹ ان آفس یا ٹل فردر آرڈر, کورٹ نہ کرے. پھر اس کے بعد آپ درخواستیں دیتے ہیں اس پٹیشن کو لگوانے کے لیے, اور وہ رجسٹرار اس کو ردی کے آبجیکشن لگا کے
रद्दी का हिस्सा बना। हम एक पर्टिकुलर डेट चाहते थे कि अब डेट आप दें, हम अगर 10 दिन हमें उसमें डिले भी पड़ जाती है, तो हम चूँकि ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उसकी आँख का मसला वो तय हो और उसका इलाज हो। इसके बारे में भी कुछ किए जाएंगे। तो जैसे आपने अदालत में भी जिक्र किया जनरल ज़िया के दौर का, आजकल तो जमहूरी दौर है बज़ाहिर देखने में, तो कोई फ़र्क महसूस होता है या जनरल ज़िया वाला दौर बेहतर महसूस होता है या नहीं, वो बेहतर नहीं था बहुत। आज का दौर बेहतर समझते हैं? उसने इस्लामिया वो इस्लामी हर चीज़ को वो इस्लाम मुशर्रफ ब इस्लाम करना की जो सूझी ना, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें मैंने एक मजमून में लिखा। उसमें एक इजिप्शियन स्कॉलर ने आके पढ़ा कि जो पानी को बॉयल करने का जो है बॉयल करने उस पे अच्छा उन्होंने लिखा उसके कॉन्फ्रेंस का नाम था इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस। अब मैंने लिखा कि इस्लामिक साइंस क्या है? साइंस एक चीज़ है, हिंदू भी देखेगा, क्रिश्चियन भी देखेगा, मुसलमान भी देखेगा, साइंस ने अपना मजहब नहीं बदला। तो साइंस आपको ये साइंस मजहब पर मबनी हो, अगर हिंदू पानी बॉयल करे तो उसकी इतनी वो गैस सर्फ हो कि वो जाके 150 डिग्री पे वो हिंदू का पानी उबले, और मुसलमान अगर करे तो 50 डिग्री पे वो उबल जाए पानी। फिर तो हमने कहा कि कोई हिंदू साइंस और कोई इस्लामिक साइंस, कोई क्रिश्चियन साइंस कोई होगी। अब उस पर ज़ियाउल हक के दौर में जो मैं आपको बता रहा था, ये एक कॉन्फ्रेंस की गई इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस, और उस तरह के मामलात। और सर ये बताइएगा, ईद से पहले इमरान खान को अडियाला से हस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से आपकी कोई बात हुई है चीफ जस्टिस साहब से? जी, बातचीत जो हुई है हमारी वो मैं बताऊंगा, तो ये तवक्को ना करें। ठीक है, बात सिर्फ इट विल कम इन द फ्लो ऑफ थिंग्स एंड द फ्लो ऑफ। मुतमईन आज की मुलाकात जो हुई है उससे मुतमईन है? हाँ, कल फैमिली की मुलाकात करवाई जाएगी। कल कल अच्छा फैमिली की मुलाकात बात करवाई जाएगी, उन्होंने पैगाम भेजा कल का। तो होगा, कुछ फर्क पड़ेगा। बाकी हम तो हैं, हम अगर गवर्नमेंट और जुडिशरी तलवार बकफ हो जाए इमरान के खिलाफ, तो हम भी तलवार बकफ हो जाए। जी अलीमा खान साहब, आप बताइएगा कि मुलाकात के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई गई है? नहीं, एतजाज साहब के लिए भी पैगाम आए हैं आप चीफ की तरफ से। आप अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे फॉर्मल या कोई? क्या पैगाम सर आया? इंशाल्लाह होगी। एतजाज साहब के लिए ये अभी मुलाकात के बाद ये पैगाम भेजा गया? हाँ, पीछे से भी आया है एतजाज साहब के लिए मैं कि वो बता दें पब्लिक में बता दें कि आपकी कल मुलाकात होगी। हाँ, ये फैमिली की चीफ तरफ जस्टिस साहब की तरफ से पैगाम है? हाँ, वो कहाँ है? बहुत शुक्रिया। एक मिनट नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं नीचे मीटिंग करूंगा। आप अदालत में मौजूद थी, आपने क्या देखा कि आज जो कुछ हुआ, चीफ जस्टिस साहब से एतजाज एहसन साहब की मुलाकात हुई, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं, देखें, एतजाज साहब खुद आए हैं और उन्होंने हमारे साथ, क्योंकि हमारे तो फैमिली के इनके साथ तो बहुत करीबी ताल्लुकात भी हैं, दोस्त भी हैं, तो हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये आज हमारी फैमिली के साथ इन्होंने आके इमरान खान की लिए जो आंख के लिए, ख़ास तौर पे जो आंख के लिए मसला है, उसके लिए आज इन्होंने चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुए हैं सलमान सफदर के साथ, और हम
हम दिल से शुक्रगुजार हैं, बल्कि हमें कभी मशवरा चाहिए होता तो हम जाते ही एतजाज़ साहब के पास हैं। तो लेकिन आज इन्होंने देखे, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, 6 दिन का इनको डॉक्टर ने कहा था बेड रेस्ट दिया हुआ था, और ये उस हालत में उठ के आके आज बैठे भी रहे, ना तो सिर्फ चीफ साहब के साथ खड़े थे, उधर से इन्होंने फिर धरना दे दिया था। ये साथ हमारे बैठ गए थे, और हम इसलिए बैठे थे क्योंकि एतजाज़ साहब ने कहा मैं यहाँ ही बैठूँगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं होती। फिर इनकी मुलाकात जब चीफ साहब से हो गई तो फिर हम नीचे आए, और जो इनकी बातचीत हुई है वो कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस की तरफ से जो भी पैगाम या जो डिसीजंस होंगी या जो फैसले होंगे वो उसमें नज़र आएंगे, हमें भी नहीं उसका पता, और इन्होंने भी उसकी बात नहीं की है। लाइट से मौजू के हल्के फुल्के मौजू के लिए चीफ साहब की आज एक और फ्रीक तो उन्हीं में से भी मुलाकात हुई। एक और आपका बड़ा रिकॉर्ड। हम आपको खुशाम जमानत करवा दी है जो खान सर जो फैसला आया कल का फैसला जमानत वाला फैसला है आपका। परसों वाली जमानत हुई है उस केस में। बीबी जरा सुन तो लें, ये ट्रोलिंग जो करवा रही है ये हुकूमत करवा रही है। मेरा सवाल इमरान खान साहब से आपको मुलाकात का मौका मिले तो क्या आप उन्हें मशवरा देंगे कि अपने कारकुनान के लिए अपने लिए को आसानी वाला दरमियानी रास्ता निकालें, या उनको डट के खड़ा रहने का मशवरा देंगे? देखें, बात यह है कि आपने डील की बात की। खान ने मुझे कहा ना मैंने डील करनी है, ना मैंने इन चोर लुटेरों डाकुओं की तरह जो है मुल्क छोड़कर सरूर महल में जाना है। मेरा मरना जीना इसी धरती में है। मैं आवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले ये सारे पाकिस्तान की जेलें मुझे क्यों ना। खान साहब ने कहा आप क्या मशवरा देंगे? आप क्या मशवरा देंगे? अगर आपसे मशवरा लिया जाए आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं भी यही मशवरा दूंगा कि अवाम के हकूक़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अवाम ने उन्हें 8 फरवरी 2024 को हैवी मैंडेट देकर जिताया है, 180 सीटें जिताई हैं। मैं भी एमएनए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये इमरान खान के तो फैल से एमएनए जो बना हूँ, इमरान खान के वोटों से बना हूँ। इमरान खान का जो है वो ग्राफ था, और इमरान खान ने कहा ये मेरी सीट है, मुझे लड़ने नहीं देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस सीट से जो है एमएनए बने। और बनने के बाद ही मैंने जाके इमरान खान को कहा कि ये तेरा मैंने जो है इस पर पहरा दिया हुआ है, तू जब आएगा इसको जो है अपनी सीट जो तेरी अमानत है। यानी आप इमरान खान साहब को मशवरा देंगे कि वो सिटी जेल में रहे, कोई दरमियानी रास्ता ना लें? आप कह रहे थे कि ईद वो घर गुजारेंगे, तो क्या अभी भी मेरे इंशाल्लाह हमारे मैं बिल्कुल कायम हूँ। आप ये बतौर कानूनदान ये बात कर रहे हैं या बतौर सियासतदान ये बात कर रहे हैं ईद पे घर वाली? खान साहब देखिए, मैं बतौर इंसान भी बात कर रहा हूँ, मैं बतौर पाकिस्तानी भी बात कर रहा हूँ, मैं बतौर मुसलमान भी बात कर रहा हूँ, मैं बतौर उसके पार्टी के कारकुन की हैसियत से भी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के सारे अवाम जो चाहते हैं, जिनका वो दिलों की धड़कन है कि वो इमरान खान उनके दरमियान में जो है ईद गुजारें, ईद उल फितर गुजारें। और इंशाअल्लाह ईद उल फितर मुझे तवक्को है, क्योंकि मेरी हद तक, जहाँ तक मेरे ज़िम्मे जो केसेस थे सारों में मैंने ज़मानत करवा दी है। एक ही केस ही है जो आज लगा हुआ है, इसी की वजह से इमरान खान आज पाबा सलासल है। ये केस जब तक मेरे पास था, अगर रहता तो आज तक बाहर होता। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल पहले मैंने इस पर नोटिस करवाया था। उसके बाद जो है आप क्या समझते हैं अभी जिनके पास है उन वकीला को वो जिम्मेदार है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनकी जगह पे तो कोई बात नहीं कर सकता। ये तो वो खुद आपको जवाब देंगे। वो भी अपनी जुस्तजू करने के लिए बैठे हुए हैं, आज भी, अभी भी बैठे हुए हैं, इस वक्त भी बैठे हुए हैं। तो जो फिस्तायत हो रही है वो आपके सामने है। इस केस की हद तक मैं जवाबदेह नहीं हूँ, इसलिए कि हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में जो आपके ज़िम्मे केस नहीं है, आप उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इसकी तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात पर इसलिए कायम हूँ कि मैंने हर केस में जो मेरे तफवीज़ शुदा था, परसों वाला समेत ये बीबी अभी बात कर रही थी, उसमें भी खान साहब ज़मानत पर हैं उसमें। इसलिए मेरे हिसाब से तो उनकी ईद घर पे होनी चाहिए, और होनी इसलिए मुमकिन है होगी। अब एक केस ये रह गया है, इसके लिए वो बैठे हुए हैं। उम्मीद है
कि अगर इसको लगा देते हैं, जिस दिन इसकी समाअत हुई, जिस दिन समाअत हुई, क्योंकि ये केस सारा मैंने किया हुआ है, जिस दिन ये समाअत हुई उस दिन ही उनकी मुखलसी होगी। और सर आपने कहा है कि आप इंटरफेयर आपने इस केस में नहीं कर सकते, तो आज एतजाज अहसन साहब भी आए हुए थे, उन्होंने रोस्टरम पे आके बातें की हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप तो सीनियर हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? एतजाज अहसन के पास अलीमा बीबी गई हैं, बहनें चल के गई हैं उसके घर पे लाहौर से, उसको लेकर आई हैं। एतजाज अहसन के पास सलमान सफदर गए हैं जो उनके वकील हैं, और राजा सलमान अकरम राजा साहब गए हैं, उनको वहाँ लेकर आए हैं। वो खुद सीधे मेरे दफ्तर में आए और उन्होंने कहा चूंकि तूने ये केस किया है मुझे बता इसके क्या है। फिर उसने कहा कि ये डॉक्टर की बुनियाद पर अगर रिपोर्ट नहीं की गई तो दरख्वास्त लिखो। वो मैंने दरख्वास्त लिखवा के एतजाज अहसन ने दस्तखत कर 3-3 घंटे 4-4 घंटे मैं उसकी तैयारी करवाता रहा हूँ इस केस में। तो ये नहीं है एतजाज अहसन मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन उनके अपनी फैमिली और उस वकील को वो लेकर आए हैं। चूँकि एतजाज अहसन का मेरा ताल्लुक आप सारों को पता है। सर एक सवाल है, एक बात करेगा तो ये जो खवातीन ने आपसे बात की, सोशल मीडिया पे भी इस चीज को लेके काफी ट्रोल किया जा रहा है, इस हवाले से आप बता दें। देखिए सोशल मीडिया पर ये हुकूमत करवा रही है ट्रोलिंग। मैंने तो जो है मैं सीनियर मोस्ट वकील हूँ पाकिस्तान का, इसमें कोई शक है किसी को? मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ, इसमें किसी को दो आ रहा है शक है? नहीं सर। मैं आज तक जिंदगी में मैंने कभी तैयारी के बगैर केस में पेश नहीं हुआ, मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ये अगर इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं तो ये अगर ये समझते हैं कि मैं जो है इसको खान को छोड़ जाऊंगा, मैं खान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक खान जेल में है मैं उसका आखिरी अगर बंदा होगा तो मैं हूँगा इंशाल्लाह। सर आप और खान का मैं साथ, तो इसलिए मैंने अपनी जान, अपना तन धन मन मारा है अपना खान के लिए। और हर केस में अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास था ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, कोयटा के केस से लेकर लाहौर के केस से लेकर इस्लामाबाद, ये जो है 9 मई वाले केस, 9 मई मेरे हल्के में आता है बाय द वे। ये जो कोर कमांडर हाउस है वो मेरे हल्के में, वहाँ से मैंने हूँ, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है इसको। और एतजाज अहसन भी इसलिए सीधा ये लेकर आई और सीधा मेरे घर आया। 4-4 घंटे हम 2 रातें जो है उसको मैं बताता रहा सारा। इसलिए एतजाज अहसन मेरे कहने पर या अज खुद नहीं पेश हुआ, वारिद हो गया वो उसको लेकर। लेकिन सर इमरान खान की लीगल टीम पे बहुत ज्यादा सवालात उठाए जाते हैं। जहाँ तक इमरान खान की लीगल टीम का ताल्लुक है, पाकिस्तान के टॉप के नामवर वकील जो है इमरान खान की लीगल टीम में पीटीआई में है। सर अभी तक आप लोग आपको निकाल के, सर जैसे आपने कहा आपके अलावा सर, लेकिन लीगल टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए जो फिस्तायत इस वक्त हो रही है, नाकामी की वजह क्या है? आपने ये भी बात की कि ये केस मेरे पास होता तो अभी तक जमानत हो जाती, मेरा मतलब ये कि फिर मैं नहीं देखें जो फिस्तायत इस वक्त है ये कभी देखी न थी। मैं नवाज शरीफ का दौर भी देखा, मैंने बेनज़ीर का, जरदारी साहब का दौर भी देखा, लेकिन जो इस वक्त जो फिस्तायत हो रही है, जिस तरीके से 26वीं और 27वीं तरमीम में अदलिया को अपनी गुलामी में ले लिया गया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को मुनहदिम करके रख दिया है, जिस तरह से अदालतें कंट्रोल की जा रही हैं, ये पहला कभी ना था। वकला का मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि उनको मुर्द इल्ज़ाम इसलिए नहीं ठहराऊँगा क्योंकि अभी भी देखें कि सारे बैठे हुए हैं उसके चेंबर में, अभी चीफ जस्टिस मिल तक नहीं रहा है उनसे। क्या सर जी धरना हो रहा तो है? इसलिए अगर तो जिस दिन ये समाप्त होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस केस में अलकादर का केस, या इसको आप 190 मिलियन पाउंड वाला केस कहें, ना एक धेला इमरान खान को इसमें 190 मिलियन पाउंड में से आया है, ना अलकादर ट्रस्ट में सुहावे की जमीन से और यूनिवर्सिटी से एक धेले का उसमें ट्रस्ट में आया है। देखिए मेरी तो तैयारी पहले भी थी और उस वक्त भी थी। और भाई साहब जज साहबान आपने जिम्मे लेंगे या सरकार के खाते में डालेंगे? वो आप ही के खाते में डालने की कोशिश करते हैं। जजेस का उम्मीद रखें कि अदालतों के जरिए आप खान साहब को निकालेंगे या आवाम सड़कों पे आएगी तब खान साहब निकलेंगे? देखें दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। आपको सड़कों पे भी प्रेशर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका अवामी प्रेशर देखते हैं तो अदालतें भी थोड़ी तकवीयत पकड़ती हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं अवाम तो आ रही है लेकिन एमएनएज और एमपीएज नहीं आ रहे। पंजाब के कितने एमएनएज और एमपीएज आए हैं आप बता दें थोड़ा सा। लाहौर का तो मैं अकेला एमएनए हूँ, मैं तो हर जगह मौजूद होता हूँ, धरने पर भी होता हूँ। एक ही एमएनए हूँ मैं। ठीक है, आप एक ही हैं।
MNA एक ही है पार्टी का भाई। ठीक है, पंजाब के और कितने आ रहे हैं वो आपके लम्बे नहीं यार बस कर देना। इमरान खान साहब इतने प्यारे इंसान हैं। उसके बाद जो है उसके ऊपर समाअत होगी और फिर केस आगे बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात ही है कि इन्होंने बहानों से, हमारी तरफ से वकला ने, सलमान सफदर साहब, एतजाज साहब और दीगर वकला वहाँ पर खड़े थे, गुफ्तगू करते हुए सलमान साहब ने कहा कि 9 दफ़ा इन्होंने पहले बहाने बनाए इमरान खान साहब के केस को मुलतवी करने के लिए, बुशरा बीबी साहिबा को केस को मुलतवी करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की जो हेल्थ के ऊपर, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर यानी मेडिकल के ऊपर जो ज़मानत है उसके लिए हम एक अथॉरिटी लेकर आए हैं, एक जजमेंट लेकर आए हैं, एक फ़ैसला लेकर आए हैं। उस फैसले की रोशनी के अंदर फौरी तौर पर उनकी इस बुनियाद के ऊपर कि उनकी आंख का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना है, ज़मानत दे दी जाए। तो वो जो पहली जो मिसाल उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा कि मुल्तान के अंदर ये फैसला हुआ कि एक शख्स को 302 के केस के अंदर सज़ा हुई लेकिन मेडिकल की बुनियादों के ऊपर ज़मानत मिली। दूसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि बीबी खातून है तो लिहाजा उस ग्राउंड के ऊपर उनकी ज़मानत दी जाए और ये अर्जेंट नौयत का मामला, इस केस को सुना जाए। तो इस केस के अंदर जो समाअत है वो आप देखते हैं, एक समाअत जो है वो आज जो है वो उसके अंदर पेशरफ्त पहली ये हुई है कि हमारी तरफ से ये कहा गया कि आज हम अपनी तरफ से दलाइल दे लेते हैं, कल ये दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर फैसला दे दी जाए। इस केस को आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कोई डेट ऑफिस ने नहीं दी, कोई डेट अदालत ने फिक्स नहीं की। अभी दोबारा डेट को फिक्स करने के लिए हम अदालत के अंदर अलीमा आपा, सलमान सफदर साहब और दीगर सेक्रेटरी के ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, इस्तदा कर रहे हैं कि उनके केस के अंदर जो समाअत जो है वो आपने फिक्स नहीं की वो फिक्स की जाए। साथ में ये बताऊं कि उस उन्होंने जो है वो दरखास्तों के हवाले से कहा था कि इसके ऊपर नोटिस नहीं हुए, तो अदालत ने वो नोटिस जारी किए हैं और 1 लाख रुपया जुर्माना जो है वो नैब को किया है। अब 1 लाख जुर्माना, अरबों रुपया जिन्होंने लूट मार की हो, 1 लाख रुपया जुर्माने का उससे क्या फ़र्क। हमें तो ज़रूरी ये था कि उन दोनों की ज़मानत होती ईद से पहले, वो दोनों ईद से पहले बाहर आते। जो है शौकत बसरा साहब बात करेंगे, डार साहब करेंगे। देखें बात क्या करनी है, आइन कानून और अदालतों का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। इन बेचारों की जजेस की हैसियत ही कुछ नहीं है, जो उनको हुक्म मिलता है उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं, उसके मुताबिक वो तारीखें देते हैं। आप अंदाज़ा करें इससे बड़ा इंसाफ का क्या कत्ल होगा कि 14 महीने के बाद केस लगता है और वहाँ पर जज साहब आते हैं और वो नैब, ना उनका प्रोसिक्यूटर मौजूद, ना उनका वकील मौजूद, और जज साहब को वहाँ पे कोई गुस्सा नहीं आता। इसलिए क्योंकि ये सब लोग 27वीं तरमीम के बाद अदलिया अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, अदलिया का जनाजा निकल चुका है। इसलिए हमारे लिए कोई हैरानकुन नहीं है, सिवाय रास्ता जद्दोजहद का पाकिस्तानियों, और जद्दोजहद से हम इमरान खान साहब को राह करवा सकते हैं। इन अदालतों से कोई राय नहीं मिल रही हमें। क्या कहेंगे जज साहब? बिल्कुल जी, जिस तरह अभी मेरे भाई नईम और बसर साहब बात कर रहे थे कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये अदालतें जो हैं ये फौत हो चुकी हैं और ये आज़ाद अदालतें नहीं हैं। यहाँ पीछे से फैसले आते हैं, वो पढ़ लिख के जो है वो सुनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है इन्हीं अदालतों के दरवाज़ों पर आके बार बार दस्तक देंगे और इन्हीं बैठे हुए जो इन अदालतों के मुनसफ़ हैं, जिनको यहाँ ये बैठे हुए हैं, उन्हीं से हम ये तकाजा करेंगे और दुआ भी करेंगे कि ये होश के नाखुन लें और जिस मकसद के लिए ये यहाँ बैठे हैं इंसाफ करें। बाकी रही इमरान खान साहब के केसेस की बात, देखिए इमरान खान साहब के केसेस जो है ना वो तो खुली किताब की तरह हैं। इन बंद अदालतों को तो छोड़ें, मैं कहता हूँ ये डी चौक है इधर पास, डी चौक में आप अवाम की अदालत में इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात लगा लें, ओपन ट्रायल कर लें मीडिया के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तमाम मुकदमात जो हैं वो झूठे मुकदमात हैं। इमरान खान साहब को जबर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती उन्हें जो है वो जेल में बंद रखा हुआ है, उनकी अहलिया को बंद रखा हुआ है। ये जो फस्ताई निज़ाम है ये इससे कोई खैर की तो नहीं है, मैं आपको बताऊं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आज भी अगर उन्होंने प्रोसिक्यूशन को फाइन किया है, जज साहब को फाइन करने के बजाय ये ऑर्डर करना चाहिए कि आज से केस कल पे जाता, कल से फिर मंडे पे जाता। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, वो एक औरत भी इसमें है, हाउस वाइफ है, उसके भी केसेस थे। देखो इंसाफ के दरवाजे आपने लोगों पे बंद कर दिए।
इंसाफ अगर होता हुआ तो क्या, अगर इंसाफ दरवाजे पे आके दस्तक दे के भी आप दरवाज़ा ना खोलें तो लोग विजिलेंटी जस्टिस पे जाएंगे, ये नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाती, वो माशरा तबाह हो जाता है जिसमें इंसाफ ना हो, वो माशरा बहाल नहीं रहता जिसमें एक के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा कानून हो। आइन की सुपरदारी, सुप्रीमेसी अगर होनी है तो सब के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे हमेशा पाकिस्तान का आवाज़ उठाया है। हमने आज़ाद अदलिया के लिए आवाज़ उठाया है, हमने आज़ाद जजेस के लिए आवाज़ उठाया है, हमने आज़ाद मीडिया के लिए आवाज़ उठाई है। हम हमेशा से ये कहा है कि अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन वो बंदा जिसने 30 साल तक ये मेहनत की वो आज खुद इंसाफ मांग रहा है। आज भी अभी भी वकला चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में बैठे हैं कि हमें तारीख़ दी जाए। रमज़ान में हर दूसरे दिन लोगों को बेल में तारीख़ मिलती है, हमें 1 साल बाद भी तारीख़ नहीं मिलती। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की जे खान साहब की जितनी 90% पाकिस्तान में फॉलोइंग है, इसका मतलब है कि 17 करोड़ अवाम इस वक्त उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे लीडर के साथ आप ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप इस पूरे मुल्क का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। मिनिस्टर गौर साहब कितनी दफ़ा आप आ चुके हैं हाई कोर्ट? देखो आज हमारा 21वां मरतबा हो रहा है, 21वां। ये एक तारीख मेरे पास लिखी है, 20 मरतबा कल हो गए, आज 21 मरतबा, कल आएंगे 22 मरतबा हो जाएगा। 21 मरतबा दस्तक देकर के भी आपने इंसाफ हमें नहीं दिया। ये भी वर्ड्स रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि आपने ये इंसाफ नहीं दिया। भी आए, दरख्वास्त की थी बुनियादों पर। देखिए मैं समझता हूँ जहाँ तक बेलों का ताल्लुक है, बेलों का होता है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन वकील आ गया। इसमें जज साहिबान खुद देखते हैं कि प्राइमा फेशी केस को देखते हैं और 1.5 घंटे आधे घंटे की हियरिंग होती है। कोर्ट कंसिडर करती है क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एट द एंड ऑफ द डे वो एक्विट हो जाए। अगर ऐसा ही है तो कोर्ट सस्पेंड करके बेल दे देती है, उनका राइट है। और बेल सस्पेंड करनी चाहिए थी, जजमेंट सेंटेंस सस्पेंड करने चाहिए, खान साहब को बेल मिल। कुछ केसेस में खुद आप लोग टाइम मांग लेते हैं और कुछ केसेस में आप लोगों को टाइम नहीं मिलता। आज भी एक हफ्ते के लिए टाइम मांगा गया और कल भी कहा गया था कि हमें टाइम दिया जाए। नहीं, देखो जिस केस में ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने टाइम मांगा है वो एक बहनों की एप्लीकेशन है कि उनको एक्सेस दी जाए। मैं जजेस को यही तो कह रहा हूँ कि आपने सब्सटेंशियल जस्टिस करना है। आप आईनी अदालत है, आपके पास इख्तियार है, आप टेक्निकलिटी पे ना जाएं, आप एप्लीकेशन को करें। अदालतें तो एक स्लिप पे करती है। देखो ये मुसल्लम असूल है जजेस के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए। जज साहब अपने घर में भी बैठा हो तो वो एज अ जज बैठता है और वो ऑर्डर कर सकता है। वो किसी भी जगह में बैठता हो तो हाई कोर्ट का जज वहाँ ऑर्डर कर सकता है। लोअर कोर्ट्स के लिए ज़रूरी है कि उसका कोर्ट नोटिफाई हो, फिर उस बिल्डिंग में बैठे, वहाँ झंडा भी लगे, कायद आज़म की तस्वीर भी हो। हाई कोर्ट के जजेस के लिए नहीं, वो जहाँ भी बैठता है वो ऑर्डर कर सकता है, वो जस्टिस है। इंसाफ को होता हुआ नज़र आना चाहिए। इंसाफ आप करें। इंसाफ में आपने बहुत देर कर दी, देर से इंसाफ करना भी इटसेल्फ नाइंसाफ़ी, और ये नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक पार्टी को दीवार में चुन दिया गया, एक पार्टी को लीडर को उसके ख़ानदान से, बच्चों से, फैमिली से न बात कराई जाती, न मिला जाता है। वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी उनको सपोर्ट नहीं को जुर्माना करना सर नहीं है, जुर्माने का नहीं। बस करो।